English course, class 10th, subject Maths, day 24, day 25, day 26. Day 24, unit Equations in two variables, subunit Equations in two variables and their concept. Let's recall. Question 1. Observe the equations in the following table and identify variables in them and degree of the equation. नीचे आपको इक्वेशंस दी गई है, उसमें से आपको वेरिएबल फाइंड आउट करना है और इक्वेशन की डिग्री भी बताना है. क्वेश्चन नंबर 2. सोल्व फॉलोइंग इक्वेशंस. फर्स्ट, m plus 7 is equals to 3. Second, 2x plus 5 is equals to 13. And third, y plus 3 is equals to 2. First, m plus 7 is equals to 3. So m is equals to 7 minus 3, m is equals to 4. Second, 2x plus 5 is equals to 13. 2x is equals to 13 minus 5. 2x is equals to 8. So x is equals to 8 upon 2. So x is equals to 4. Third, y plus 3 is equals to 2. So y is equals to 2 minus 3. So y is equals to minus 1. In all the above equations, there is only one variable and its degree is 1. Hence, this type of equations are called as equation with one variable. इन सभी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और हर एक की डिग्री 1 है. सो ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Example 1. Find two numbers whose sum is 12. Equation form x plus y is equals to 12. Above equation is equation in two variable. In this equation, two different variables are used. Degree of both the variables is 1. We can get more than one solution for above equation and those are as follows. Equation x plus y is equals to 12 में दो वेरिएबल है और हर एक की डिग्री 1 है. इस इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. जैसा कि यहाँ दिया गया है 9 plus 3 is equals to 12, 7 plus 5 is equals to 12, 8 plus 4 is equals to 12, 6 plus 6 is equals to 12, minus 1 plus 13 is equals to 12 and 10 plus 2 is equals to 12. Hence solutions for above equations are 9 3, 7 5, 8 4, 6 6, minus 1 13 एंड 10 2. इस तरह इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. एग्जाम्पल 2. फाइंड टू नंबर्स विथ डिफरेंस ऑफ 8. इसके लिए इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन फॉर्म x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 होगा. एबो इक्वेशन इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वी कैन गेट मोर देन वन सोल्यूशन फॉर एबो इक्वेशन एंड दोज आर एज फॉलोज. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं. कुछ सोल्यूशन इस तरह हो सकते हैं. 9 minus 1 is equals to 8 होता है. 10 minus 2 is equals to 8. 11 minus 3 is equals to 8. 12 minus 4 is equals to 8. 13 minus 5 is equals to 8. Hence solutions for above equation are 9 1, 10 2, 11 3, 12 4, 13 5, 15 7 and infinite solutions हो सकते. Second, general form of equation in two variables. ax plus by plus c is equals to 0. In this equation, a, b, c are real numbers. A and b cannot be 0 at the same time. ax plus by plus c is equals to 0. ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है. इस इक्वेशन में a, b, c ये रियल नंबर्स है और a और b एक ही वक्त में सेम टाइम में 0 नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल्स. First, 3x plus 2y plus 2 is equals to 0. Second, 3x plus 5y minus 4 is equals to 0. Third, 5x plus y plus 7 is equals to 0. Fourth, x plus 3y minus 6 is equals to 0. These are the examples of linear equation in two variables. Assignment. Question number 1. Write the following statement in equation form using two variables. Write 5 solutions for each equations. ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है. हर स्टूडेंट का आंसर इसमें अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ आंसर्स दिए हैं. आप अपने तौर पे भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. इसके लिए आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करना है. इस एक्टिविटी को
आपको कंप्लीट करके दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एटलीस्ट 5 सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। दी गई इक्वेशन के आपको 5 सॉल्यूशंस लिखना है। आपको हर इक्वेशन के लिए 5 सॉल्यूशंस यहाँ लिख कर दिए गए हैं, उसे आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एटलीस्ट 5 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y। आपको कोई 5 इक्वेशन लिखना है x और y का यूज़ करके। आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ 5 इक्वेशंस लिखी है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने तौर पे भी अपना आंसर्स लिख सकते हैं। डे 25, सब यूनिट साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। लेट्स रिकॉल, फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इस इक्वेशन के आपको कुछ सॉल्यूशंस यहाँ दिए गए हैं, जैसे 9, 5, 7, 7, 8, 6, 4, 10, -1, 15 एंड इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के कुछ सॉल्यूशंस आपको यहाँ दिए गए हैं, 7, 5, 0, -2, 8, 6, -2, -4 और भी इन्फिनिट सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हो सकते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन पे गौर करें तो हमें एक कॉमन सॉल्यूशन यहाँ नज़र आता है, 8, 6 ये दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। Important points, simultaneous equations. Two linear equations in two variables having same variables are together called as simultaneous equation. ऐसी two linear equations in two variables जिसमें same variables हो, अगर हम उन इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, एक साथ गौर करते हैं, तब वो इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती है। Activity 1, find two numbers whose sum is 34 and difference is 12. Equation 1, x plus y is equal to 34 and equation 2, x minus y is equal to 12 बनती है। अगर हम गौर करें तो दोनों इक्वेशन का सेम सोल्यूशन 23 और 11 होता है। Activity 2, find two numbers whose sum is 45 and difference is 17. आपको दो इक्वेशन फॉर्म करके दी गई है। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 एंड सेकंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। आपको यहाँ इक्वेशन भी सॉल्व करके दी गई है। एक्टिविटी 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 60 एंड डिफरेंस इज 22। इक्वेशंस आपको यहाँ फॉर्म करके दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 और एक्टिविटी आपको सॉल्व करके दी गई है। एग्जाम्पल्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है। फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। सेकेंड, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। थर्ड, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। फोर्थ, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 15 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह इन्फाइनाइट इक्वेशंस लिखी जा सकती है। थर्ड, टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करना। एलिमिनेशन मेथड में साइमल्टेनियस इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाया जाता है और उसे एलिमिनेट किया जाता है। एग्जाम्पल 1, सॉल्व 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 देंगे। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/5 होगा। सो फाइनली x इज इक्वल टू 2 होगा। दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए हमने इक्वेशन को यहाँ ऐड किया है। सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 2 आता है, सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, सो वी गेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x के प्लेस पे हम 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4 होता है, सो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आता है, सो y इज इक्वल टू 1। हेयर 2, 1 is a common solution of the given equations. Example 2, solve 3x plus y minus 5 is equals to 0, 3y plus 2x is equals to 1। सबसे पहले हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे इस तरह से, 3x plus y is equals to 5 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x plus 3y is equals to
1 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में अगर देखें तो किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। सबसे पहले हमको कोएफिशिएंट सेम बनाना होगा। कोएफिशिएंट यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमको इक्वेशन नंबर 3 मिलती है। 9x + 3y = 15। इसके बाद हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट करने पर हमें 7x + 0 = 14 मिलता है और x = 14/7 आता है। 14 को 7 से डिवाइड करने पे x = 2 मिलता है। x = 2 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो हमें 3x + y = 5 ये इक्वेशन में हम 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 6 होगा। 6 + y = 5 आएगा। सो y = 5 - 6 होगा। सो y = -1 होगा। So 2, -1 is the solution of both the equations. Assignment question number 1. Write following statements in equation form. नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। आपको दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आगे सॉल्व करके दिए गए हैं। सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद दिए गए आंसर्स से आप उसको चेक करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस के लिए आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। Day 26. Important points to solve simultaneous equations by substitution method. There is one more method of solving simultaneous equations and that is by substituting the value of one of the variables in terms of other variable. Simultaneous equation solve करने का ये दूसरा मेथड है। इसमें एक वेरिएबल की पूरी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में पुट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल 1. सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - y = -1. Solution 2x + 3y = 11 equation number 1, 2x - y = -1 equation number 2. It will be easier to represent the value of y in terms of x using equation second. इक्वेशन 2 से y की वैल्यू को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इजी होगा। y के फॉर्म में लिखने पर हमें मिलता है y = 2x + 1 इक्वेशन नंबर 3rd. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. y की ये वैल्यू y = 2x + 1 इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है 2x + 3y = 11। y की वैल्यू पुट करने पर 2x + 3 × 2x + 1 = 11। सो 2x + 6x + 3 = 11 होगा। सो 8x + 3 = 11 आएगा। 3 को माइनस करने पर 8x = 11 - 3। सो 8x = 8 आएगा। सो x = 8/8 मीन्स 1 होगा। Put x = 1 in equation 3rd. We get y = 2 × 1 + 1. So y = 2 + 1. So y = 3. So 1, 3 is the solution of the given simultaneous equations. Example 2. Solve 5y - 3x = 14 and 3y - 2x = 1. Solution 5y - 3x = 14 equation 1 and 3y - 2x = 1. It will be easier to represent the value of y in terms of x using equation second. इक्वेशन सेकंड का यूज़ करके y की वैल्यू निकालेंगे। सो y = 2x + 1/3 मिलता है। इसे इक्वेशन 3 नाम देंगे। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। सो वी गेट 5 × 2x + 1/3 - 3x = 14. 10x + 5/3 - 3x = 14. 10x + 5 - 9x/3 = 14. इसे सॉल्व करने पे हमें मिलता है x + 5 = 42. सो x = 42 - 5. सो x = 37.
Put x is equals to 37 in equation 3. So y is equals to 2 into 37 plus 1 upon 3. So y is equals to 74 plus 1 upon 3. So y is equals to 75 upon 3. So y is equals to 25. So 37, 25 is the solution of the given equations. Assignment question number 1. Solve following simultaneous equations. First, 3x plus 2y is equals to 8 and x plus 2y is equals to 4. Second, x plus y is equals to 11 and 2x minus 3y is equals to 7. Third, 2y plus 5x is equals to 13 and x minus 2y is equals to 5. Fourth, 5m plus 8n is equals to 9 and m plus n is equals to 3. सभी क्वेश्चंस आपको आगे सॉल्व करके दिए गए हैं. पहले आप खुद सॉल्व करें और दिए गए आंसर से अपने आंसर्स को चेक करें. इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. It is the answer of question number 2. It is the answer of question number 3.